Artemis Hospital, supported by Celebrity Clinic, Delhi Laughter Club, and Gurgaon Laughterians Club. Our speakers are Dr. Shivanshu Roy Goyal, will talk on lung care in the pandemic time. Dr. Diksha Goyal will talk on physical and mental health in this COVID pandemic time. And Mr. Arun Sethi, he is the president of Delhi Laughter Club. He will talk on laughter therapy, how laughter therapy can be helpful in lungs care and mental care during this COVID time. So whenever we start with the program, whenever the Laughter Club is involved, we start with the laughter. We thought of giving the positive energy to everyone, to start with. So that's the customary 1 minute laughter for word peace. You don't have to do anything, but just laugh for 1 minute. Okay, right? So your time starts now. Laugh for nothing. Every morning. Yes, let everyone unmute. Yes, doesn't matter. Let everyone laugh. Yes. Right, okay. Okay, mute everyone. Now mute everyone, please. Yes. Okay. Dr. Shivanshu. Dr. Shivanshu. Sir, I have to unmute sir again. Just a second. अब सबको म्यूट कर दीजिए अब डॉक्टर शिवांशु और मेरा खाली रखिएगा. Yes, sir. I think everyone can hear. Okay, right. Audible? Yeah. So, Niharika, am I audible? is it okay now? Yes.
Okay. Shall we Right. start, sir? Well, you see, I just your portfolio. Okay. So, because Dr. Shivanshu Goel's portfolio is too big, you know. If I start reading, it will take full one day. But I'll go in small brief. Dr. Shivanshu Goel, he did his MBBS from Dr. NTR University, Vijayawada, and he did his MD Pulmonary Medicine and gold medalist in SRM Medical College, Chennai. He did his DNB in NAMC Dental, New Delhi. He is Fellow of Asia Pacific Society of Respiratory Disease, Tokyo. Fellowship in Critical Care, FCCM, Apollo Mediversity. He is clinical specialty in organ transplantation. He has many papers, he's presented many papers in national and international forums. He has received extensive training in bronchoscopy and thoracoscopy in Singapore. He has done extensive training in sleep medicine, diagnosis and management of respiratory allergies and immunology. At present, he is consultant in respiratory and pulmonary disease in Artemis Hospital. And before joining Artemis Hospital, he was in Sir Gangaram Hospital. And over that, if anyone wants to ask anything about in any language like English, Hindi, Punjabi, Tamil, and Telugu, he is very well versed with all these languages. So you can ask him all these languages also. So over to Dr. Shivanshu. Thank you so much, sir, for such a kind intro. And what a lovely way to start this program, by a lovely laughter for over a minute. It's the best way to start this program. So as sir has given my intro, so I'll start straight away with my topic. That is, like, I'm not going to talk about a didactic lecture. मैं यहाँ पे कोई didactic lecture नहीं दूंगा, but I'm going to interact and give major tips about what is lung health, how we can protect our lungs in terms of short term, long term, try to break lot of myths which are going around in the news and WhatsApp and whatever, and show two of the most important things which we hear, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं. So अगर हम बात करें, so when we talk about lungs क्या है? Lungs basically हमारे every human being has got two lungs, but lungs का जो function है वो सिर्फ lungs तक सीमित नहीं होता. Right from the nose to the throat and till we breathe, ये पूरा system is called the respiratory system of a human body. और अब जब हम बात करते हैं, we talk about a unified airway concept. That means कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे किसी भी ऊपर के हिस्से में, सांस के हिस्से में अफेक्ट करती है, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही है. वाई मैं इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस टाइम में हम लोग एक कोविड के बीच में जी रहे हैं. कोरोना वायरस एक पुराना वायरस है जो म्यूटेट होते होते अब एक नोवल कोरोना के फॉर्म में हमें नजर आ रहा है. पहले जो सार्स का वायरस आपने सुना होगा या MERS का वायरस सुना होगा, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली. बट वो जो वायरसेस थे, दे वर ओनली लिमिटेड और प्रिडोमिनेंटली लिमिटेड टू द लंग्स, या मतलब जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. इसलिए उनका स्प्रेडिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं था. उनसे लोगों को हानि बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग सिक बहुत थे, निमोनियाज बहुत कॉमन हो रहे थे, बट इतने ज्यादा लोग इतने बड़े नंबर पे अफेक्ट नहीं हो रहे थे. बट कोरोना वायरस हमारे माउथ से लेके हमारे थ्रोट के पीछे सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है. सो ऐसे बहुत लोग हैं जो आप डे इन डे आउट सुन रहे हैं कि दे आर एसिम्प्टोमेटिक, दे आर कैरियर्स, यहाँ से वहां घूम रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं रियलाइज हो रहा कि उनको वायरस है और वो औरों को फैला रहे हैं. ये बिकॉज कोरोना वायरस बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करे. तो ये सबसे पहला तो ये मिथ है कि कोरोना वायरस से निमोनिया ही होगा, कोई जरूरी नहीं है. कोरोना वायरस कैन ऑल्सो क्रिएट ओनली अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. 5 से 6 मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हम लोगों को पता होने चाहिए और वी शुड नो कि अगर ये है इन द प्रेजेंट डे एंड एज, वी शुड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स, कुड दिस बी अ
possibility of a COVID. Now जो वो common symptom है, जैसे एक ड्राई कफ का स्पेल आना, हेडेक होना, गले में खराश जिसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, या हमारे सांस के अंदर जो अब लेटेस्ट 2 सिम्टम ऐड हुए हैं कोरोना के साथ, स्मेल की सेंसेशन खत्म हो जाना या ऑल्टर हो जाना, या खाने का टेस्ट नहीं आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ एनी वायरल डिजीज, जैसे बॉडी में पेन, थकान, फीवर और डायरिया। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस टाइम कोरोना वायरस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें एक तो ये जानना है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से लेके लंग्स तक ये सब सिम्टम दे रहा है। जिसके कोरोना वायरस का प्रेडोमिनेंट एक्शन नोज के लेवल पे होगा, उसको छींकें आ रही होंगी, नाक बह रहा होगा। जिसके गले में होगा उसको सिर्फ थ्रोट हो रहा होगा। जिसके लंग में चला जाएगा उसको लंग की प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सांस चढ़ेगा। निमोनिया बनना उसका एक पार्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोरोना के पेशेंट के अंदर निमोनिया बने। अगर हम बात करें कि हम अपनी लंग्स का केयर कैसे लें, तो जो हम लंग्स की केयर को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, शॉर्ट टर्म केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर। इन दोनों के अंदर फिर एक सब हेडिंग होती है कि कुछ लोग जिनको ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है और द पीपल वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम क्रॉनिक लंग डिजीज, चाहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा हो, चाहे वो सीओपीडी हो या आईएलडी हो, लंग का फाइब्रोसिस है या किसी को लंग कैंसर है, वो सब क्रॉनिक डिजीजेस हैं। शॉर्ट टर्म केयर क्या होता है? शॉर्ट टर्म केयर मतलब कि हम अपने आप को इन्फेक्शन लगने से बचाएं, और उसको बचाने के अंदर 2 तरीके हैं। प्रिवेंशन के अंदर बैरियर तरीका और दूसरा न्यूट्रिशनल तरीका। बैरियर तरीका तो जो आप डे इन डे आउट सोशल मीडिया पे, न्यूज में, हर जगह सुन रहे हैं, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड, बट वो ही हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। दैट इज रेगुलर हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अपने मुंह और नोज को कवर करना। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं मुंह और नोज। लॉट ऑफ टाइम्स हमें पेशेंट आते हैं, हमें लोग दिखते हैं सिर्फ मुंह पे मास्क बांधा हुआ है या मास्क लटका हुआ है, वो सही तरीका नहीं है। इसको हम अपना टी जंक्शन बोलते हैं, नोज एंड माउथ, इसको हमें कवर रखना है इस टाइम पे। उसके साथ जब हम कवर कर रहे हैं, किस तरह का मास्क यूज करना है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट उसमें बता रहा हूं अभी। लेकिन कवरिंग योर फेस एंड माउथ, एक बेसिक डिस्टेंस मेंटेन करना जितना पॉसिबल है, जिसको हम एक बहुत रफ एस्टिमेट में कहते हैं 2 आर्म्स लेंथ या 2 आर्म की दूरी रखें। भीड़ भाड़ के इलाकों में वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। नाउ इट इज कॉल्ड द अनलॉक, एंड व्हेन इट इज अनलॉक इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे एल्डर्स हैं, एनीबडी हु इज अबव 60, एनीबडी जिनको क्रॉनिक लंग की प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज, उनके लिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि अपना एक्स्ट्रा केयर लेना। इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना, घर में जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लें। डू नॉट टेक दिस डिजीज लाइटली। ये डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसके इतने ज्यादा वेरिएशन है। यू कैन हैव पीपल जिनको कोरोना हुआ और उनको रियलाइज भी नहीं होगा और वो ठीक हो जाएंगे। एंड लकीली एशियाटिक पॉपुलेशन में या इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन में 70-80% पॉपुलेशन ऐसी है जो एसिम्टोमेटिक रहे या जिनको बहुत माइल्ड डिजीज रही। दैट इज फाइन, बट उसके बावजूद भी देयर आर पीपल हु हैव बिकम सिक इन द हॉस्पिटल्स। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, सब लोग कर रहे हैं, बिकॉज हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर पीपल जो हमारे एल्डर्स हैं या जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है। अब आती है जो बैरियर के, मैं मास्क के बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, हमें जो चीजें अवॉइड करनी है वो पहले इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अवॉइड स्मोकिंग, इन टर्म्स ऑफ कि हम खुद स्मोक ना करें, जो स्मोक कर रहा है उसके साथ ना बैठें। और एक और तरह की स्मोकिंग होती है जो मुझे नहीं पता सब लोगों ने सुना है कि नहीं, जिसको हम थर्ड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग वो होती है जो एक्टिव स्मोक कर रहा है,
पैसिव स्मोकिंग वो होती है जो कि आप किसी के साथ बैठे हैं, वो स्मोक कर रहा है और आपके लंग्स को वो डैमेज कर रहा है। थर्ड हैंड स्मोकिंग वो होती है कि कोई एक पर्टिकुलर रूम में स्मोक करके चला गया और आपके सामने कोई स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्मोक के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं हमारे फर्नीचर पे, सोफों पे, वो हम इनहेल करते हैं, वो भी हमारे लंग्स को डैमेज करता है। सो हमें तीनों तरह के स्मोकिंग से बचना है। इसीलिए व्हेन यू गो टू अ होटल, दे आस्क यू, डू यू वांट अ स्मोकिंग रूम और अ नॉन स्मोकिंग रूम, बिकॉज स्मोकिंग रूम्स के अंदर एक सर्टेन स्मेल बनी रहती है, वो थर्ड हैंड स्मोक है जो किसी भी तरह से वो नहीं हटा सकते। तो एक ये फैक्टर है हमें समझना। अगर हम 50 के ऊपर की एज है और अगर हमारे किसी पेशेंट को या हमारे फ्रेंड को या रिलेटिव को या कुलीग को स्मोकिंग की हिस्ट्री है, एक स्पेसिफिक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पैक ईयर, कि कोई इंसान एक पैकेट रोज की स्मोकिंग कर रहा है फॉर ओवर 30 इयर्स या ओवर 15 इयर्स, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो सच पीपल शुड आल्सो अंडरगो अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बाय देयर डॉक्टर। इसको हम बोलते हैं लंग स्क्रीनिंग, बिकॉज दे आर हाई रिस्क पीपल। उनके लंग्स में क्या हार्बर कर रहा है दे विल नॉट रियलाइज। स्मोकिंग को अवॉइड करना तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ ऐसे खाने जो इस टाइम हमें अवॉइड करने हैं वो हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टू मच ऑफ कैफीन, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, और मतलब बहुत ज्यादा शुगर या स्वीटेंड फूड अवॉइड करना है। पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर हमारा पानी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रूटीनली लोगों को पानी ज्यादा पीना है जिससे हमारा लंग्स हाइड्रेटेड रहे। साथ साथ विटामिन सी वाले फूड्स लेने हैं। विटामिन सी इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलोंग विद जिंक हमारे लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई, मैं बहुत लोगों से सुनता हूं कि हम बहुत विटामिन ई खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। विटामिन ई खाने में कोई मेजर नुकसान नहीं है, बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन नुकसान भी दे सकता है लंग्स को। तो विटामिन ई के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। ये एक बेसिक आइडिया है। जो भी ले आप एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में लें। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो अब WHO रिकमेंड कर रहा है, ऑल्दो हम बहुत ज्यादा नहीं रिकमेंड कर रहे कि आप ग्राउंड्स में जाके, पार्क्स में जाके करें, बट अपने को डिस्टेंस रखते हुए अपने घर में जितना भी आप कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली करें फॉर एडल्ट्स, एंड फॉर चिल्ड्रन एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एन एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए। इसके बाद आती है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसकी डिटेल्स डॉक्टर दीक्षा आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं उसको सिर्फ लंग्स के तक सीमित रख रहा हूँ। अब हम अगर हम बात करें इसके अगला स्टेप कि हम लंग्स का लॉन्ग टर्म केयर, लॉन्ग टर्म केयर में हमें एक और चीज समझनी है कि कुछ गलतियां हम रूटीनली करते हैं। वो क्या है? अगर आप लोगों ने सुना हो, देयर इज अ बीमारी कॉल्ड सीओपीडी। सीओपीडी या जिनको बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा है, ऐसे लोगों के अंदर डीप ब्रीदिंग इज नॉट अ गुड साइन, नॉट रिकमेंडेड। रूटीनली हम सोचते हैं कि डीप ब्रीदिंग इज अ गुड thing for lungs. It is true normally, but for people of very severe asthma, people of COPD, deep breathing can be counterproductive. इससे क्या कहने का मतलब है? COPD में हमारे लंग्स फूल जाते हैं और अगर हम और हवा भरते रहेंगे अंदर तो और नुकसान होता जाता है। हम अपनी एयर को लंग से खाली नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है COPD की। सो इसके अंदर हमें क्या करना होता है? There is something called, which what we doctors tell is called pursed lip breathing. Pursed lip breathing में क्या होता है कि आप एक शॉर्ट ब्रीथ अंदर लें और लंबे टाइम तक सांस को बाहर छोड़ें। जैसे हमें अपने लिप्स को थोड़ा पतला करके लंबे टाइम तक एक्सहेल करना है। ये आप नेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के बारे में आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बलून है और अगर हम उस बलून में हवा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, जब तक उसकी स्टेल एयर बाहर नहीं निकलेगी तो अगली एयर अंदर जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वही है, हम ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर ले नहीं पा रहे हैं और हम और डीप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉमन गलती जो मुझे देखने को मिलती है, मैं चाह रहा हूं सबके लिए, लॉन्ग टर्म
COPs हैं या बहुत सीवियर एस्थमेटिक्स हैं, उनको बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए। अब आती है बात, अगर हम बात करें कि मैंने आपको स्मोकिंग के बारे में बताया, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं मास्क के बारे में, मास्क एक ऐसी चीज है जो अब मेरे ख्याल से हमारे लिए एक नया नॉर्मल बन गया है। काफी लोगों को पहले मिथ था मास्क के बारे में, बट एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो टोल्ड इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स कि एक टाइम था जब पहले कोई फ्रूट लेके जा रहा था तो लोग कहते थे कि घर में कोई बीमार है, आप फ्रूट लेके जा रहे हो, तो अब फ्रूट खाना इज कंसिडर्ड हेल्दी। उसी तरह पहले जब कोई मास्क पहनता तो लोगों को लगता था कि बीमार है इसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन अब इट इज द अदर वे अराउंड कि अगर कोई मास्क पहन रहा है तो वी से कि यू आर केयरफुल कि आप मास्क पहन रहे हो। सो दिस इज द वे सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होती है टुवर्ड्स अ सर्टेन हैबिट। मास्क हैज बिकम वन ऑफ दैट हैबिट नाउ, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, कॉन्ट्रेरी टू कोई भी कुछ कहे, इस टाइम कोई भी मेडिकल साइंस के पास कोरोना का कोई श्योर शॉर्ट इलाज नहीं है। डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं, वी आर डूइंग बाय आवर ओन एक्सपीरियंस और बाय द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कोलीग डॉक्टर्स इन द कंट्री और अब्रॉड। तो अभी प्रिवेंशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। वो एक अलग बात है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कंट्री के अंदर और लोगों को इन्फेक्शन होगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो एक 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 विजन है। एंड इंडिया इज अ यंग कंट्री इन कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन यंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि अगर एक यंग पॉपुलेशन को एक बड़े स्केल पे इन्फेक्शन जा रहा है और वही सिम्टोमेटिक है, सो पीपल बिकम इम्यून अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। बट मास्क का उपयोग हमें रेगुलरली करना है। अगर कोई बीमार है उसके लिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बीमार नहीं हैं फिर भी आपको पब्लिक प्लेसेस में मास्क जरूर पहनना है। अगर हम मास्क की बात करें सो बहुत तरह के मास्क हैं, बट ब्रॉडली अगर हम दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हॉस्पिटल ग्रेड मास्क एंड होम बेस्ड मास्क। हॉस्पिटल ग्रेड मास्क वो होते हैं जो एक टिपिकल मटेरियल से बनते हैं या कुछ फॉर्म में N95 मास्क होते हैं। हमें रूटीन लाइफ के अंदर N95 मास्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो रोल ऑफ वेयरिंग N95 मास्क एट होम और इन द मार्केट प्लेस और रूटीन वॉकिंग। You ideally should not be doing that. Lot of people I have seen वो N95 मास्क पहन के जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो और नुकसान है, बिकॉज N95 मास्क उन चीजों के लिए नहीं बना है। उसका ब्रीदिंग पोटेंशियल उस तरह से नहीं डेवलप किया गया है कि वो साइकिलिंग के लिए हो। साइकिलिंग जॉगिंग के लिए एक सेपरेट कैटेगरी के मास्क आते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो कम होता है, रेजिस्टेंस टू द ब्रीदिंग कम होता है। अगर हम बात करें होम बेस्ड मास्क की, any good quality cloth based mask is good। बहुत आप लोगों को लगता है कि वायरस का पार्टिकल छोटा है, मास्क से निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस को ट्रैवल करने के लिए ड्रॉपलेट की जरूरत होती है। सो द आइडिया ऑफ अ मास्क इज टू ब्लॉक द ड्रॉपलेट स्प्रेड। जब ड्रॉपलेट स्प्रेड आगे नहीं जाता तो मास्क अपना फंक्शन करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मास्क, मैं एक तरह से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि मास्क अगर हम लॉन्ग टर्म में पहन रहे हैं या अपने ऑफिस में पहन रहे हैं, जो गलती नॉर्मली लोग करते हैं, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं कि हमें क्या सावधानी बरतनी है कि किस तरह हम अपने मास्क को पहने और किस तरह उसको उतारें और फिर को रीपहने। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका ऑफिस है, अब तो आप ऑफिस जा रहे हैं, अब ये सारी बातें मैं तब कर रहा हूँ क्योंकि नाउ वी आर इन द अनलॉक, वी आर नॉट इन द लॉकडाउन फेज नाउ। यू आर इन एन ऑफिस जहाँ पे आपको 4 घंटे बैठना है या 6 घंटे बैठना है, तो आप अपना मास्क पहन के तो पूरे टाइम नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपको खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, कुछ और भी करना है। सो व्हाट आई सी पीपल, दे कीप टचिंग देयर मास्क, दे कीप एडजस्टिंग देयर मास्क। उससे बड़ा गलत स्टेप कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज अवॉइड कर रहे हैं हमने वही अपने हाथों से कर ली कि हमने मास्क के आउटर सरफेस को हाथ लगाया जिसके ऊपर सारे वायरसेस या जो भी चिपक गया है और वो अब हमारे हाथ पे आ गया। या तो हम ये ध्यान से बरतें काम कि हमने मास्क को टच करते ही इमीडिएटली हाथ धोएं, वो भी हम नहीं करते हैं। हमने मास्क को एडजस्ट किया, फिर कुछ खा रहे हैं, फिर मास्क को एडजस्ट किया, हम अपनी आंख ठीक कर रहे हैं, मास्क को टच करने के बाद बाल ठीक कर रहे हैं, ये नहीं करना है। इससे
you are just getting a false sense of security. तो मास्क को पहनने का तरीका और मास्क को कैसे उतारना है बिना टच करे, I'll show you. For example, ये एक मास्क है. Don't go by this mask, it can be any mask. So जो सबसे important तरीका होता है मास्क को पहनने का, हमारे ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, उन स्ट्रिंग्स को हमने पीछे रखा और हमें मास्क को, जब ये फ्रेश मास्क है, अभी यूज नहीं हुआ है, मैंने इसको बाहर से पकड़ा हुआ है और हमने इस मास्क को अपने फेस पे रखा. सो नाउ जो इसका ये लोअर स्ट्रिंग है, इस लोअर स्ट्रिंग को पकड़ के मैं इसको अपने हेड के अराउंड ले जाऊंगा. दैट इज 1. नाउ अब मैं इसका अपर स्ट्रिंग पकड़ूंगा और ये मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा. सो अब ये मास्क मैंने पहन लिया. अब मास्क मेरा फिट है. ये मास्क बना ही ऐसे है कि ये मेरे चारों तरफ फिट आ गया है. अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, रूटीन वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. अब मुझे खाना खाना है, मेरा लंच टाइम हो गया है. अब मैं एवरी टाइम मास्क तो फेंकूंगा नहीं, क्योंकि मास्क पहली बात तो बहुत कम मिलते हैं जो अच्छे क्वालिटी के हैं, और अगर आप वर्क प्लेस पे पहन रहे हैं या आप खुद के मास्क है तो आप उनको घर जाके वॉश करेंगे या जो भी करेंगे. तो उसका एक टेक्निक होता है. इस तरह का एक प्लास्टिक बॉक्स अपने साथ कैरी करेंगे. ये बॉक्स बहुत इजीली किसी भी घर में मिल जाएगा, टपरवेयर का या किसी भी उसका. इसको कैसे यूज करना है, आप इस बॉक्स को अपने मुंह पे रखेंगे इस तरह से, और इसको रखने के बाद हम स्ट्रिंग्स को मूव करेंगे बॉक्स के ऊपर. आई शो यू. आप शायद आवाज नहीं आएगी लेकिन यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग. पहले हमने लोअर स्ट्रिंग को हटाया और फिर हमने अपर स्ट्रिंग को हटाया. अब ये मास्क इस बॉक्स में आ गया. मैंने मास्क के आउटर सरफेस को टच नहीं किया, बट ये बॉक्स ने मेरे मास्क को रख लिया. ये मेरा बॉक्स है जिसको मैंने अपने लिए सिक्योर रखा है. अब मैं इसको बंद करके रख दूंगा. मैं अपना खाना खाऊंगा या जो भी करूंगा. उसके बाद जब मुझे दोबारा ये मास्क पहनना है, मुझे अगेन मास्क को टच नहीं करना. I will just keep the box on my face and I will pick up the string and go back. And mask दोबारा मेरे मुंह पे आ जाएगा. तो इससे क्या होता है कि हमने मास्क को बिना टच करे मूव भी किया है और वापस पहना भी है. तो ये एक चीज है जो हमें समझनी है. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉर्मली लोग गलत कर रहे होते हैं मास्क को लेके. मास्क के आउटर सरफेस को टच करके हम अगर अपनी आंखों को टच करें या किसी और पार्ट को टच करें तो इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ यूजिंग अ मास्क. वी डू नॉट रिक्वायर टू यूज दिस काइंड ऑफ अ मास्क. अगर आप डिस्पोजेबल मास्क पहन रहे हैं तो सिर्फ अपनी स्ट्रिंग से मास्क पहनिए. मास्क को अपने चारों तरफ पहनिए एंड व्हेन यू आर थ्रोइंग इट, रिमूव इट फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड थ्रो इट. दैट इज द वे मास्क इज worn. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, और सब लोग शायद सुन रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव से सुन रहे हैं या किसी लोगों से सुन रहे हैं, कि कोरोना पेशेंट्स के अंदर लोग पल्स ऑक्सीमीटर्स खरीद रहे हैं. सडनली लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन चेक करो, और छोटे छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं, अपने फिंगर पे ऑक्सीमीटर्स लगा रहे हैं लोग. एंड मेरे पेशेंट्स मुझे फोन कर रहे हैं, जो हमारे पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको हम घर पे, जिनको हम डील कर रहे हैं फोन पे, दे आर लाइक कि सर हमें पल्स ऑक्सीमीटर ले लिया है लेकिन हमें कभी ऑक्सीजन कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. पल्स ऑक्सीमीटर इज अ स्मॉल डिवाइस. ये इस तरह का डिवाइस होता है. इसके अंदर हमारे को ये देखना है, जब हम अपनी फिंगर इसके अंदर रखते हैं और इसको प्रेस करते हैं, इट विल गिव मी 2 तरह की रीडिंग. एक तो मेरी पल्स को बताएगा और एक मेरा ऑक्सीजन लेवल बताएगा. जो मेरा पल्स ऑक्सीमीटर मेरा रीडिंग बता रहा है, ये तब तक रिलायबल है जब मैंने उसको ढंग से फिट किया है, एक अच्छे सरफेस पे रख के रखा है. मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए ऐसे पकड़ा हुआ है, नहीं तो इसको टेबल पे रखना चाहिए. और मेरे हाथ गीले नहीं है, मेरे हाथ बहुत ठंडे नहीं है, या मैंने आधी उंगली अंदर नहीं रखी है. काफी बार आधी उंगली बाहर है, आधी अंदर है, सैचुरेशन 90 आ गया, 80 आ गया, लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, 80 सैचुरेशन आ गया. लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डार्क नेल पॉलिश लगी हुई है तो पल्स ऑक्सीमीटर becomes useless. Pulse oximeters can only work if your nail is clear.
वो नेल के थ्रू उसका एक वेव बैंड काम करता है, और अगर आप नेल पॉलिश के थ्रू लगाएंगे तो उसकी वैल्यू रिलायबिलिटी नहीं होगी। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि पल्स ऑक्सीमीटर रूटीन लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वो रखते हैं ऑक्सीमीटर अपने पास, बिकॉज कोरोना एज ए डिजीज हमारे कुछ हद तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है और हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए लोग पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसको ध्यान से यूज करना, उंगली ठंडी ना हो, गीली ना हो, और उसको ढंग से यूज करना, और कोई उसके बीच में कोई बैरियर ना हो। अगर आपने ये सारे स्टेप्स लिए हैं, देन द ऑक्सीमीटर बिकम्स रिलायबल, अदरवाइज नो। अब आती है बात, अगर हम बात करें कि एक लास्ट 2 टॉपिक्स पे मैं और बात करूंगा कि एक तो ये है कि कोरोना से हमें पैनिक नहीं करना है। इफ वी आर डायग्नोस्ड विद कोरोना, अगर हमें हो जाए, बहुत लोग कह रहे हैं कि कोरोना से बचना कैसे है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर हो जाए तो क्या कर ले। अगर हो जाए तो 3 चीजें हैं, या तो वो डिजीज इतनी माइल्ड होगी कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा, सेकेंड थिंग इज कि वो माइल्ड से मॉडरेट लेवल पे होगी कि आप अपने घर पे रह सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ट्राई टू कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन अ टेलीमेडिसिन या फोन पे फैमिली डॉक्टर के साथ, और अवॉइड करना है बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह में या बड़े हॉस्पिटल्स में जाने का, क्योंकि कोई हॉस्पिटल, आई विल मेक श्योर आई एम एट अ बिग हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट या कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि हम बहुत माइल्ड या मॉडरेट पेशेंट्स को हॉस्पिटल में डालते रहें। Nobody is here for a profit making. They are all here for a service, and they are already overburdened by the people जिनको actually जरूरत है। So अगर बहुत माइल्ड या मॉडरेट डिजीज है, ट्राई टू बी एट होम, अपने आप को मॉनिटर करना है, अपने सांस को मॉनिटर करना है, और अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना है। बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो जाती है 80% लोगों में, और जिनमें थोड़ा सा भी रह जाता है उसके अंदर भी कोई मेजर मोर्टेलिटी अभी तक इस डिजीज की नहीं मिली है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई इसको वो है, लेकिन जितना हम प्रिवेंट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। Finally, I will close by couple of myth busters which I have been getting. Lot of people have sent me कि ये myths हैं. I'll just read कि can coronavirus spread through shoes? पर से ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना वायरस शूज के अंदर लग के आ जाएगा, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट टू रिमूव शूज आउट ऑफ योर हाउस, एंड स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हॉस्पिटल और अ प्लेस लाइक क्लिनिक, तो आप शूज को बाहर उतारें, अच्छी बात है। बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि शूज के साथ लग के कोरोना वायरस घर में आएगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म मास्क पहनने से लोग कह रहे हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है, उनको चक्कर आ जा रहे हैं। ये हो जाता है उन लोगों में जिन्होंने बहुत ही टाइट फिटिंग और हॉस्पिटल ग्रेड मास्क पहन के तेज चल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके अंदर जो रूटीन मास्क होते हैं और आप रूटीन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें इस तरह का कुछ नहीं होता। ड्रिंकिंग अल्कोहल, विल इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट कोरोना? It will not, because the kind of alcohol percentage the corona needs on a surface is more than 60%, and you are not going to drink more than 60% alcohol. So that is on a lighter note. But corona जैसे ही बॉडी में जाता है, it gets coated by a lipid envelope. उसके अंदर अल्कोहल और इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्मल स्कैनर्स, बहुत लोग कहते हैं हम बिल्डिंग में जा रहे थे, थर्मल स्कैनिंग हुई तो इट इज कोरोना पॉजिटिव। नो, thermal scanning only tells you कि you have a slightly high temperature. It is not a diagnostic test for corona at all. I think अपने सूप में पेपर डालने से कोरोना से बचेंगे, ऐसी कोई प्रूवन चीज नहीं है। और बाकी तो चीजें मैं आपको बता दी है। मेरे पास अभी किसी न्यूज चैनल से आया था एंड एक क्वेरी थी कि माउथ वॉश करते रहें तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा मुंह से। ये एक मिथ है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम माउथ वॉश हमारे 2 तरह के होते हैं, कॉस्मेटिक और थेरेपेटिक। जो कॉस्मेटिक वाले होते हैं उनमें से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो थेरेपेटिक होते हैं, क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश, उनसे हम अपने सिर्फ माउथ के प्लेक्स को क्लियर कर सकते हैं। वी कैन नॉट किल द वायरसेस इन द माउथ, सो दे आर नॉट मेंट टू स्टॉप द कोरोना स्प्रेड। फिर एक बहुत ही वो था कि मास्क क्वालिटी चेक करने के लिए हम मास्क के थ्रू मोमबत्ती बुझा दें तो मास्क
खराब है और मास्क के थ्रू मोमबत्ती ना बुझे तो मास्क अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि ऐसी ये सब चीजें न्यूज में आ रही हैं, डोंट गेट मिसलेड बाय ऑल दीज थिंग्स। यू आर गुड टू वेयर अ गुड क्वालिटी होम बेस्ड मास्क, बट ये मोमबत्ती बुझाना, और क्योंकि इट इज अबाउट द ड्रॉपलेट स्प्रेड, यू आर नॉट लुकिंग एट द वायरस, वायरसेस आर नॉट विजिबल। आई थिंक मोर और लेस तो मैंने चीजें कवर करी हैं। डॉक्टर दीक्षा विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल well-being of or about people in these times, but any of your questions I'll be very happy to answer. Sir. Have few questions. Shall I take the questions? And Sir, Dr. Shivanshu, sir, what about AC? We are nowadays hearing about ACs. AC is not good for the corona. no, there is nothing like that, because what happens, see, I'll tell you very simply. Lot of people are moving in buildings, even in hospitals. Agar AC circulation ke through corona फैलता तो nobody would have survived. It is just not possible, because AC circulation तो central ducting all around होती है, but there is a concept कि हम एक certain temperature अपने room का maintain करें. Let's not make it very cold, because जो हमारा throat होता है, so our throat becomes a potential if we are in a cold environment. So that is the idea. It is not the AC per se. And sir, what about the diet? What diet should be taken during this time to keep our lungs healthy? You can have absolutely a normal diet जो आप घर में लेते हैं, कोई special diet नहीं होती कोरोना के लिए, but increase the amount of vitamin C and zinc in your diet. Avoid fatty foods, avoid too much of sweet things, and avoid alcohol. These three things have to be avoided. Otherwise आप अपना जो normal nutrients, minerals लेते हैं, they are all very good for you. And ऐसा कोई diet अलग से नहीं बना है. बहुत चीजें आयुर्वेदा में भी हैं, बहुत चीजें होम्योपैथी में भी हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग. आई फील एवरी स्पेशलिटी इज डूइंग देयर बेस्ट पार्ट फॉर द कोरोना, बट प्रूवन जो चीजें हैं अभी तक हम उन पे बात कर पाएंगे. ऐसा कोई प्रूवन डाइट प्लान नहीं है कि विच विल शॉर्ट प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना. And sir, how far laughter yoga therapy is helpful in treating lung disease, especially in COVID-19 pandemic? Per How se, far laughter therapy? Okay. Per se, laughter is a very good therapy, because laughter creates a different kind of hormonal increase in your body, and आपकी body के अंदर healing शुरू हो जाती है laughter से. So laughter is a therapy for most of the things. But per se, अगर मैं कहूँ कि somebody is suffering from corona and we are not taking proper treatment and we think कि only laughter will cure it, वो नहीं होगा. But yes, we should promote laughter. बट इसके साथ एक छोटा सा राइडर है. पीपल ऑफ अ क्रॉनिक लंग डिजीज जिनके रिजर्व्स बहुत पुअर होते हैं, अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड लाफ्टर या बहुत ज्यादा लाफ्टर उनको टायर आउट कर देगा. तो हमें वो भी नहीं करना है. वी हैव टू मेक अ बैलेंस. तो ये भी होता है. मेरे खुद के पेशेंट हैं जो ILD के पेशेंट है, जो ऑक्सीजन पे हैं. वो ऑक्सीजन हटा के कर रहे हैं कि हमें लाफ भी करना है, हमें डीप ब्रीदिंग करनी है. वो नहीं होगा. ऑक्सीजन शुड नेवर बी टेकन एज अ मिथ. ऑक्सीजन अगर आपको रिकमेंडेड है तो इट इज प्रॉपरली रिकमेंडेड. लोग ऑक्सीजन को 1 घंटा लगाते हैं, फिर 5 घंटे उतार देते हैं. ऑक्सीजन इज लाइक स्पेक्स. अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो आपको लगा हुआ है, आपको पहनना है. ये नहीं है कि हम 1 घंटा स्पेक्स पहनेंगे और बाकी 20 घंटा स्पेक्स को उतार देंगे. वो नहीं होगा. And how far steam is helpful in treating corona? Steam per se, it only treats or cleanses your upper respiratory tract. But once the virus forms a lipid layer around it, उसको steam का फर्क नहीं पड़ता है. वही मैं कह रहा हूँ. Temperature and all these things affect the virus on a dead surface. Once the virus is attached to a living cell, then the temperature will not make a difference to the virus. But yes, steam लेने से हमारा nasal passage clear रहता है, so the chance of the virus attaching becomes little less. तो वो एक advantage है. So there is a question.
After you quit And long-term heavy smoking, how much time does it take for lungs to get back to a normal functioning? Okay. Now there is a complete chart to explain how the lung functions start recovering. You won't believe that certain parameters of the body, in terms of the heart, in terms of your lung functioning, start improving even after 12 hours of not using a cigarette, and then they keep improving. But uska ek pura flow chart hai. By the end of the 5th year of a chronic smoking stopping, your chances of getting a cancer will be half as compared to a smoker, and at the end of the 10th year it will be as good as a non-smoker. So what I'm trying to say कि कितनी लंबी स्मोकिंग करी है, that is more important, and how when you leave a smoking, तो उसके साथ जो gradual recovery path है, it starts right from the 12th hour. So there is a sir, thing that somebody's brother is having 99 fever from past Okay. 3 days and it's coming and going. Okay. So what to do? I think so that they get their COVID-19 checked. No, see, the point is, see, ICMR has made clear guidelines now for whom to be tested. I will not try to overstep on those guidelines, but yes, anybody who is symptomatic in the present day, symptomatic means the ILI, जिसको हम बोलते हैं, influenza-like illness. That means fever, sore throat, anything, any problem in the nose, any problem in smell, such a patient should definitely be tested on. और अगर उसकी कोई contact history है, becomes very very significant. और अगर हमें लगता है कि patient बिल्कुल healthy है और सिर्फ fever आ रहा है और there is no other symptom and the patient can self isolate for 14 days or 15 days and fever disappears, you really would not make a difference by testing, because you will only add a number to the statistics, nothing else. And what about the infrared gun? You know, they see the temperature. What is the significance of that temperature, sir? That's what I was telling you, the thermal scan. The thermal scans are only meant for a surface temperature. They have no bearing with corona. Anybody you want who walks from a hot sun to a building will suddenly come out to be कि उनका temperature 100 दिखा देगा या 101 दिखा देगा. And once you wait for some time, it becomes normal. So it is a good screening form to say कि हाँ, fever patients can go separate and non-fever people can be separate, जिससे कि हम एक level तक अपनी scrutiny कर सकें. It is very useful in hospitals where all sort of patients are coming, but we have to separate fever patients from non-fever patients. Routinely अगर हम उन infrared guns को diagnosis के लिए use नहीं कर सकते. They are only an idea कि थोड़ा सा temperature बढ़ा हुआ है. कितना बड़ा होता है सर? Initially कितना increase हो जाता है? Any surface, suppose if your fever if the surface temperature is 99 is also significant. Anything beyond 99 is definitely significant. So there is a question, is there any way to sanitize your mask? See, there are different ways which have been described to sanitize the mask. One thing is that if it's a washable mask, you can use bleach and water mixture to wash the mask. If it's a non-washable mask, then mask can be left in the sun. In hospitals, there are different ways to sanitize the mask because we have to manage with the kind of supply which we have, and we cannot keep throwing the N95 mask. So ETOs एक technique होती है जिसको हम use करते हैं to sanitize the mask. But in routine घरों में अगर हम use करें, तो as far as possible अगर हम disposable mask use करें या washable mask use करें तो बहुत अच्छी बात है. और अगर हमें clean करना है, तो bleach with water is a good mixture to clean the mask. Mr. Arun Sethi. Does eating ice creams or curd or any cold drinks, they affect our lungs? No, not directly the lungs, but yes, curd and cold drinks can definitely affect your throat, and throat is a good harboring area of your viruses. Mr. Arun Sethi wanted some question. Mr. Arun Sethi, I think there was a question from Mr. Arun Sethi here. Should I unmute him? I think, sir, Yes, we can please. go ahead with the. I think what we can do is, sir, we can go ahead with the one Dr. Diksha's lecture, and then we can again take all the questions. Right. And later on, if there are any questions, sir, we can Sure. we contact you?
somewhere. You can always, sir. Now, before I sign out, I'll mention that I am anyways available at Artemis, but the Celebrity Clinic at Safdarjung Enclave is also an outreach program of the Artemis. So any person who is not able to come to Artemis can always see or meet doctors from Artemis at Celebrity Clinic in Safdarjung Enclave. So I am per se the pulmonologist. Dr. Diksha is a physician and a diabetologist. There are doctors from Artemis who are specialists in pain medicine, cardiologist, nephrologist. These doctors regularly visit Safdarjung Enclave. So for people who cannot go to Artemis or who do not want to go to a hospital, can always consult Artemis Hospital at the Celebrity in Safdarjung. Good. So you And- were talking about But before we sign out, we are going to leave a number for anybody to contact also. Thank you. So you were talking about many myths. So there was a question related to a myth only, that does any particular blood group is more vulnerable to corona, or this is also a myth? Yes, this is a myth. There have been cases, when you do a trial, you find out that you have taken, suppose if you have taken 100 patients, out of 100 patients, you found out by chance this particular blood group was more commonly found in positive people. But it has still not been proven that a particular blood group will be more predominant for corona. That has not been proven till now. So I think we should conclude. Dr. Shivanshu, thank you very much. Thank you so Thanks much, a lot sir. for the information. I And- think next, shall we go on to next speaker? Yes, sir, please. Dr. Diksha Goel. Dr. Diksha Goel. Oh, welcome, Dr. Diksha Goel. Good evening, sir. Dr. Diksha Goel is a consultant physician and at Celebrity Clinic, Safdarjung Enclave, New Delhi, and will talk about physical and mental health in COVID-19 pandemic. So over to Dr. Diksha, please. Thank you. You can share your screen now and you can start with your presentation. So you Okay. have the rights to share your screen, yeah. And we are Okay. getting many questions. So I just want to tell everybody that our doctors will answer all the questions after the presentation is over. Right. Yes, Dr. Diksha, please continue. Yes. Anji, please start. Niharika, please connect Dr. Diksha. Yes, so she is connected. Her screen is visible now. So everybody can see ma'am is showing a presentation. So they'll be able to see the presentation. Niharika, is the presentation on? Yes, sir. It's visible on my screen. I think so. It's visible on other screen as well. If you all can see the presentation, then kindly show a thumbs up so she'll understand that the presentation is there. Ma'am, are you having any trouble? Just need to make you the host again. Ma'am, you just have to again do the same thing. Click on my picture and then you have to do it. Niharika, your picture is not coming at all now. So, ma'am के screen के side में icons आ रहे होंगे. 3-4 icons will be there.
So you don't switch off ma'am's presentation, otherwise it will not come again. Okay, we've done that. Yes, now can you see me? I can see there are few icons over the right side of the screen. And I can see the participants and you in those icons. Yes, participants are 122. I can see new share post, and more is coming. There's something called shall I click on the participants? So you are not able to see my picture there. I can No, see no. that. Okay, can you see Dr. Diksha's or your icon there? Yes, Dr. Diksha Goyal, consultant physician, Celebrity Clinic, A2/37, Safdarjung Enclave, Yes. So New Delhi. just a second, Dr. Ramesh. Actually, ma'am is struggling with something. I'm just asking ma'am. Great video. So there are different options. One is the speaker view, other is the show grid video. Yeah. Show grid video. We have won the show grid video. Niharika, Yes, sir. we have gone in the show grid video. So before the show grid video, there are two icons. दो dots बने हुए हैं. Yes. उस पे आप क्लिक करो. आप उस पे क्लिक करोगे तो 3-4 participants और आपका आइकन आएगा. Which one you want me to click? One is small active speaker video and the other is thumbnail video. Okay, so you click on the small active speaker video. So because I'm speaking right now, so my picture must be coming there. Yes. Yeah, so now you have to repeat the same thing you did earlier. But the 3 dots are not coming now. They are not coming on my picture. Mute and the 3 dots. No. Okay, so let's just do one thing. You just start with your presentation and we will see after that. Okay. Sure. Yeah, no issues. I can talk. Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Okay, so I would like to start my presentation on physical and mental health during this COVID-19 period. अब डॉक्टर शिवांशु ने सारे साइंस एंड सिम्टम्स तो बता ही दिए आपको कि फीवर होता है, कफ होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, मायालजिया होता है, कंफ्यूजन, हेडेक, सोर थ्रोट, नाक से पानी गिरना, और कई लोगों को ओल्डर एज ग्रुप में सिर्फ चेस्ट पेन या लूज मोशन या नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है. तो करना क्या चाहिए अगर आपको कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव होता है या कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं? तो हमें घर पे ही रुकना है और अपने किसी लोकल हेल्थ सर्विस पे कॉल करना है. डायरेक्टली किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं जाएं, पहले बात कर लें, उसके बाद ही जाएं. और आपके कोई फ्रेंड्स या नेबर्स हों तो उनको कहिए आपकी हेल्प कर दें, ग्रोसरीज या आपके जो भी जरूरत की चीजें हैं आपके घर के बाहर छोड़ दिया करें. और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सभी फॉलो कर ही रहे हैं, तो वही कंटिन्यू करना है, फॉलो करना. अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड 1 meter डिस्टेंसिंग वी हैव टू मेंटेन. इफ यू लिव विद समवन मोर वल्नरेबल, अगर आपको लगता है आप यंग हैं और आपके पेरेंट्स 68, 65 प्लस हैं और वो आपसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस डिजीज को कैच करने के लिए, तो उनके रहने के लिए या अपने रहने के लिए कोई और अरेंजमेंट करें, क्योंकि उनको इन्फेक्शन ना फैलाएं. और माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो आराम से घर में ठीक हो सकते हैं. इट कैन बी मैनेज्ड विद रेस्टिंग और ड्रिंकिंग वार्म लिक्विड्स एंड प्लेन पैरासिटामोल या कैल्पोल जो आप लेते हैं उससे आराम आ जाएगा. लेकिन अगर आपके सिम्टम्स 7 days तक भी इम्प्रूव नहीं होते और या फिर आपको डिफिकल्टी है सांस लेने में, देन यू नीड टू विजिट अ हॉस्पिटल. सो क्लीन. अब हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद ऑफ कोर्स दिल्ली हैज अ बेटर एयर टू ब्रीथ, बट व्हाट आर वी सीइंग इज दैट यस, पीपल हु हैव एलर्जिक सिम्टम्स, वो सब चीजें कम हो गई होंगी. तो कुछ चीजें बेटर भी हुई हैं सांस लेने में, लेकिन
इमीडिएट और डिलेड इफेक्ट्स क्या हैं हमारे उस पे? हम सब लोग इतने टाइम से 2-2.5 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने को मिल रहा है या सुनने को मिलता है क्लिनिक में कि मैम इतने दिनों से घर बैठे हुए थे, वेट तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है हमें अभी नजर ना आए, पर कुछ टाइम बाद हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस नजर आने लग जाएंगी। अगर हम इसको ठीक से करेक्ट नहीं करेंगे अभी, तो इसमें चांसेस हैं कि पेशेंट को थोड़े टाइम बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं। जिसको एमआई की प्रॉब्लम पहले से है हार्ट अटैक की, उसको ज्यादा हो सकती है। डायबिटीज जिनको नहीं थी वो बनने लग सकती है। और पेट में इंडाइजेशन, फैटी लिवर या घुटनों का दर्द बढ़ना वजन बढ़ने से, रात को नींद ना आना या ओबेसिटी बढ़ने से जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, तो वो सब चीजें या तो हम धीरे धीरे अभी देखने लग जाएंगे, नहीं तो 2 या 3 सालों में उसकी परेशानियां हमें दिखने को लग जाएंगी। पर फिजिकल से ज्यादा कोविड-19 ने लोगों की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट किया है। जब लॉकडाउन हुआ तब लोगों को स्टेज 1 में थे, दे डिड नॉट बिलीव कि लॉकडाउन हुआ है, सो दैट इज अ स्टेज 1 ऑफ डिसबिलीफ। देन कम्स द स्टेज 2, जब लोगों को एंगर हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई। बट नाउ आई थिंक वी ऑल आर इन दिस स्टेज 3 और स्टेज 4। कई लोग सैड हैं उस चीज से, बट काफी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और स्टेज 5 जब हमें लगेगा कि हाँ कोविड-19 की पीक खत्म हो गई है, तब शायद थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे लोगों में होप आने लगेगा, ऑप्टिमिज्म आने लगेगी। उस स्टेज को हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। बट स्टेज 1 to 4 के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप रोज घर में देखोगे या अपने फैमिली मेंबर्स में देखोगे या अपने रिलेटिव्स में देखोगे कि उन्हें मेंटली बहुत सारे इमोशंस से ओवरप्ले करना पड़ रहा है। सो किसी को मेंटल हेल्थ पे अफेक्शन हो रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हो सकता है उनको रात को नींद ना आ रही हो, देयर आर सम चेंजेस इन देयर स्लीप पैटर्न, या तो वो दिन में ज्यादा सो रहे हैं, रात को नहीं सो पा रहे हैं, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर वर्क। जो पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो और वर्सन हो गई हैं, या फिर किसी का अल्कोहल इनटेक बढ़ गया है, किसी की डिपेंडेंसी ऑन टबैको या स्मोकिंग या और किसी चीज जिस पे भी वो डिपेंडेंट है वो बढ़ गई है, या कोई भी अनड्यू एंजाइटी जो आप अपने घर में नोटिस करते हैं, या कोई अनड्यू वायलेंस। और हो सकता है कि कोई भी फैमिली मेंबर में कोई लो मूड हो या अनइंटरेस्टेड हो किसी भी एक्टिविटी में। तो सबसे ज्यादा अफेक्शन हुआ है जिनके घर में बच्चे होते हैं, बिकॉज बच्चे दे माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो उनके अपने तरीके हैं उस। फिर भी मैं कहूंगी कि चिल्ड्रन हैव एक्सेप्टेड this situation very well and they are also true COVID-19 warriors, but उनके लिए worry, anxiety, fear दिखाने का they don't have much means। और जो उनका sense of structure और जो stimulation अपने friends या school जाने से होता था, they have lost that। So it will take time for them to understand, and sometimes you might feel that they are getting irritated or they're getting angry or they're making more demands from the parents। But इस सब situation में we just have to relax and we need to give them that extra love and attention during this time। They might become more clingy, they might become more demanding, but just give them reassurance and also give them all the facts about what is happening. Try to tell them about all what is COVID, what is the symptoms, why we are not going out. Tell them all the true facts. So give them all the love and affection, be honest, explain in detail the issues with them। Children have this habit, they model। वो जिसके साथ रहते हैं, अगर वो नानी के साथ रहते हैं, मदर के साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो उन्हीं को मॉडल करते हैं। So if you are calm, if you are relaxed, they will also be fine। And parents need to remain stress free और उनके लिए डेली रूटीन बना दीजिए। अगर वो उस रूटीन पे चलेंगे so they will have less trouble। And also try to engage them in creative activities that will bring out their emotions in a much better way।
दूसरा इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे ज्यादा एल्डरली लोगों को होता है, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास, हमें ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हमें 10 रिस्क फैक्टर्स हैं इसको होने के, तो क्या हम उस चीज से लड़ पाएंगे अगर हमें हो गया तो? सो दैट फियर फैक्टर इज टू मच इन देयर माइंड्स। एज आई सेड, कोमॉर्बिडिटीज इतनी है, फिर साथ में स्ट्रेस हो जाता है, इसकी वजह से ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, फिर रात को नींद नहीं आती है, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू एंगर इश्यूज। अच्छा, जिन लोगों में थोड़ी बहुत डिमेंशिया सेट इन हो गया है या मेमोरी लॉस हो गया है, तो उन लोगों में इंक्रीज इन डिमेंशिया सिम्टम्स हो जाते हैं। प्लस अगर वो जॉइंट फैमिली सेटअप में नहीं है और वो अलोन रह रहे हैं, तो सोशल आइसोलेशन उनके दिमाग पे डिप्रेशन भी ले आता है, because they haven't been able to see their family members from so long. So इससे फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ICMR ने भी कुछ चीजें सोची थी, और ये एक स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि spend quality time with your family and get involved in family discussion. Try to involve in daily activities like gardening, cleaning, cooking. मतलब अगर आप अपने माइंड को जितना भी बिजी रखेंगे उतनी कम एंजाइटी होगी। स्पेंड टाइम ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो आप बचपन में करते थे, बोर्ड गेम्स, स्नेक लैडर, स्क्रैबल, म्यूजिक, रीडिंग, उन चीजों में अपना आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड कनेक्ट, कीप कनेक्टिंग। इफ यू आर नॉट स्टेइंग विद एनीबडी, कीप कनेक्टिंग थ्रू फोन कॉल्स, विद डिजिटल मीडिया, वीडियो कॉल्स, तो आपका स्ट्रेस लेवल एट बे रहेगा। एंड मेक सम टाइम डेली for at least 30 to 20 minutes exercise, yoga, to boost your physical and mental health. And जितनी कम न्यूज़ सुनेंगे उतनी एंजाइटी कम होगी. So try to listen to news or corona related information, like maybe alternate day for some 15-20 minutes, but don't overdo it. So as I said, if you are not able to visit your grandparents, but make sure that you talk to them. It's just physical distancing, not social distancing. So you can be socially connected on digital media. अच्छा, अब एक चीज और है, अब काफी लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 हो चुके हैं, आइसोलेशन में हैं, या जो रिकवर हो गए हैं उससे। तो जो रिकवर हो गए हैं, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग फॉर देम कि वो रिकवर हो गए हैं, बिकॉज दे फील लाइक दे हैव वन अ बिग बैटल, ऑफ कोर्स। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है माइंड में, दैट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट, बट उनके दिमाग में कई चीजें हो जाती हैं। सो उसका भी बहुत बड़ा मेंटल अफेक्शन होता है उनपे, बिकॉज उनके दिमाग में एक डर हो जाता है कि अच्छा, अगर हम क्वारंटाइन में हैं, अगर हम रूम से बाहर निकलेंगे या हम ठीक होने के बाद बाहर अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आएंगे, सो कैन आवर लव्ड वंस, कैन आवर फैमिली, अदर मेंबर्स, दे कैन आल्सो बिकम सिक। सो अदर पीपल जिनको पता था कि उनको कोविड है, दे माइट बिहेव डिफरेंटली, बिकॉज लोगों में एक स्टिग्मेटा आ जाता है, सो दे माइट कंटिन्यू टू स्टे अवे, एंड देन देयर इज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, उनको हेल्पलेसनेस लगने लग जाती है जब वो आइसोलेशन में होते हैं, कि everybody is working for them but they are not able to participate in anything, so they might feel a bit helpless about that. And जब वो isolation से बाहर भी आ जाते हैं, तो some people can have some mood swings, they can be a little withdrawn, because पिछले 2-3 हफ्ते से they have been in a different kind of atmosphere, they were all alone. And एक और चीज देखी गई है कि if suppose you had mild symptoms और आप पूरे 14-15 दिन अपने ही रूम में थे, घर में थे, and you became better, but उस दौरान आपको काफी डाउट्स आए होंगे, प्लस इंडियन सिनेरियो में या इवन दिल्ली के सिनेरियो में अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई मेडिसिन लिख भी देते हैं तो पेशेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड इट इजीली, सो दे हैव टू रन टू डिफरेंट प्लेसेस। तो इसमें आप देखिए पेशेंट को कितना टॉर्मेंटिंग होता है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, टेस्टिंग कराना चाहते हैं, so all these leads to mental anxiety. So lack of easy access to medicines, counseling नहीं मिल पाती है प्रॉपर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट इस सब में भी मैं यही कहूंगी कि all the family members can support and they should think positive. जब पेशेंट कोविड से बाहर आता है तो उसको वही फैमिली को वही लव, वही बॉन्डिंग देनी चाहिए
and they should encourage कि आप recover हो गए हो, so you share your recovery story with everyone. अदरवाइज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे अब काफी कंट्रीज में, इटली वगैरह में देखा गया है कि पेशेंट्स पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाते हैं. इसका मतलब है कि उनको उस बीमारी से इतना फियर ऑफ डेथ या स्ट्रेस हो जाता है दैट दे आर नॉट एबल टू कम आउट. स्पेशली वो लोग जिनको सिवियर डिजीज हुआ होता है, जो आईसीयू में अकेले रहे होते हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं. सो दे थिंक कि हमने डेथ को इतने पास से देखा है, सो दैट फियर ऑफ डेथ गोज इनटू देयर mind and they're not able to come out. So अगर आपकी फैमिली में या अगर आपके डिस्टेंस में किसी को भी ऐसा लगता है, so don't let it loose. There are doctors, there are counselors to help you with this. So with appropriate medications they can come out of this. अच्छा, अब मैं जनरल बात करूंगी कि आप अपनी फिजिकल वेलबींग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. जैसे कि बैरियर सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है कोविड से बचने के लिए, बट यू हैव टू स्लीप वेल. सो मेंटेन अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल. 8 to 9 hours of sleep is recommended. Warm fluids are also recommended. दिन में आप गरम नहीं, मतलब नवाया पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी, हर्बल टी, ये सब recommended है. आप जितनी मर्जी बारी ले सकते हैं. WHO has recommended कि सब healthy adults को they should do 30 minutes per day of physical activity and children should be physically active for 1 hour a day because children have higher metabolism and they need 1 hour daily exercise. बाकी जो एज्ड पॉपुलेशन है जो एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर सकती या किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं, they should take up simple yoga postures or meditation for 20 to 30 minutes to keep themselves calm. और जैसे कि हम लाफ्टर क्लब के लिए ही कर रहे हैं ये, तो of course laughter is a very good therapy. Laughter is the best medicine, best known, but it's only an added therapy to keep your good hormones and healthy hormones best. एक कोरोना के लिए वर्कआउट प्लान है, स्पेशली किड्स एंड टोडलर्स कैन डू इट. जैसे कि हम जंपिंग जैक्स बोलते हैं. स्प्रेड योर लेग्स एंड शोल्डर्स अपार्ट and they can do some push-ups at home, they can do some sit-ups at home, and they can do some squatting at home. These 3-4 things are recommended. अगर वो 20 to 25 minutes भी कर लेंगे, so उनके obesity और इन सब चीजों के chances कम होते हैं. Plus that physical exercise gives them some stress during the day and they can sleep well at night. बाकी लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते या योगा और मेडिटेशन नहीं उनको सेट होती है, so they can just do normal walking up and down the stairs or they can do some stretching exercises. If you like dancing, you can dance to music for some time, and there are a couple of ideas. I mean, I have seen kids practicing taekwondo at home or doing aerobics. So whatever suits you, you can do it accordingly. खाने पीने में अपने मील्स को पहले से प्लान कर लेंगे तो ग्रोसरी के लिए आपको वंस अ वीक ही जाना पड़ेगा. अवॉइड गोइंग आउट टू मच. एंड विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है. और स्नैक्स भी आप हेल्दी रखिए, प्रोटीनिशियस रखिए, हाइड्रेट करते रहिए अपने आप को पूरे दिन में वाटर से या लेमन वाटर से या जिंजर टी से या तुलसी कॉन्कॉक्शन से या हर्बल टीज से. अब क्योंकि आप काफी टाइम से घर पे हैं, तो क्योंकि आपका सन एक्सपोजर इतना नहीं हो रहा है, so I'm sure all of you would be vitamin D deficient. So it is very important that you consume some amount of oily fish if you're a non-vegetarian. Otherwise, the yellow part of the egg and other things which can supplement your vitamin D. And also butters are good in this way. They will help you replenish your vitamin D. Almond butter, peanut butters, they are very healthy. So eat more fruits and vegetables. Try to choose whole grains and over refined grains. Try to eat small portions. जितनी आपको उस समय भूख है आप उतना ही खाइए, उसको बाद में रख दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप चाय ले सकते हैं. Replace saturated fats with unsaturated fats and limit foods that are high in fat,
शुगर या सॉल्ट। सो बहुत ज्यादा किसी भी चीज का नहीं करिए, ऑयली चीजें ज्यादा नहीं लीजिए, शुगर ज्यादा नहीं लीजिए, सॉल्ट ज्यादा नहीं लीजिए, बिकॉज एक्टिविटी अभी उतनी नहीं होगी। लिमिट अल्कोहल। बहुत सारे स्टडीज आई हैं कि कौन सा विटामिन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बट ऑल ओवर प्रूवन अभी यही है कि विटामिन सी 500 मिलीग्राम तक लेना चाहिए, और जिंक लेना चाहिए, और B6 लेना चाहिए। जब आप ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं, सो ये एक WHO की रिकमेंडेशन है कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप कर ही रहे होंगे, बट वही वॉशिंग हैंड्स, कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस, don't go shopping if you're sick, try to do it online, or you can tell your family or friends to pick it up with you, and covering your mouth and nose with tissue or sleeve when you cough and sneeze. Avoid touching those foods in the grocery shop जो आप नहीं खरीदने वाले हैं, just touch those which you are going to buy. और जब तक आप वहाँ हैं, avoid touching your face, nose and mouth. You can plan 3 or 4 monthly visits of your grocery. Try to do self checkouts जो इंडिया में इतना common नहीं है, but pay through electronic means. Keep the cash handling to minimum. अब जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स 65 प्लस देखी गई हैं, एंड इट्स अ स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर आप 65 इयर्स प्लस हैं तो इनमें से एक चीज आपको होगी, और अगर आप 68 प्लस है तो इनमें से 2 चीजें आपको हो सकती हैं। सो हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स या COPD। बट इस सब में एल्डरली पॉपुलेशन को ये ध्यान रखना है कि वो अपनी मेडिसिन का स्टॉक हमेशा मेंटेन करें। अगर आपकी कोमॉर्बिडिटीज सेटल्ड रहती हैं और आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लेते रहते हैं, तो कोविड होने के चांसेस भी मिनिमम होते हैं। सो इन दिस पॉइंट व्हेन यू थिंक आप बारी बार बाहर नहीं जा सकते, सो यू कीप अ वेल स्टॉक ऑफ योर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, एंड प्लीज डू रिमेंबर टू टेक देम ऑन टाइम। और जितनी भी लोगों की एनुअल हेल्थ चेकअप्स होते हैं या डेंटल स्क्रीनिंग्स होती हैं या जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, कोई स्किन रिलेटेड या कोई सर्जरीज हैं जो उन्होंने प्लान करी थी कि करनी है, तो वो इस समय में हम अवॉइड करेंगे या पोस्टपोन करेंगे, और ट्राई टू डू टेली कंसल्टेशन एज मच एज पॉसिबल. Do not expose yourself in going out to clinics and hospitals. Pregnant ladies. इस समय दिल्ली में अराउंड 10 लाख एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो उनके लिए भी हम गवर्नमेंट ने कुछ टेलीमेडिसिन सर्विसेज स्टार्ट करने वाली है. Because for a pregnant person to come every month and visit a doctor is not possible in the present situation. So हम यही सजेस्ट करते हैं कि घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनकी घर पे ही वेट की, ब्लड प्रेशर की, फीटल हार्ट रेट, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग अपने आप से करें. बाकी मैटरनल फीटल मेडिसिन, जेनेटिक काउंसलर्स, ये सब टेलीमेडिसिन पे अवेलेबल हैं. वर्चुअल प्री नेटल केयर विजिट समझाई जाएंगी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा और होम कलेक्शन होगी सैंपल्स की. मेंटल हेल्थ केयर के बारे में समझाया जाएगा, और पोस्टपार्टम भी लैक्टेशन सपोर्ट के बारे में अगर कोई इश्यूज हैं या पोस्टपार्टम विजिट्स हैं, जो भी है, मैक्सिमम थिंग्स वुड बी डन बाय टेलीमेडिसिन. सो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये बोलना चाहूंगी कि जो प्रिकॉशंस बाकी लोग लेते हैं वही तरीका है प्रेग्नेंट लेडीज को भी बचने का. Wash your hands frequently, avoid touching your eyes, nose and mouth. Social distancing maintain करनी है, coughing या sneezing on your bent elbow or a tissue. और अगर कोई fever, cough या shortness of breath होती है तो seek care early. And आप जब डिलीवरी के लिए जाते हैं तो हर मदर को, even in this time, nobody can say कि आप ये आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं जा सकते, इनसाइड नहीं जा सकते, ये सब चीजें नहीं है. एवरी वुमन हैज अ राइट टू हैव अ सेफ एंड पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस. शी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट. शी नीड्स अ कंपेनियन ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द लेबर, एंड देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन बाय मैटरनिटी स्टाफ. एंड इफ शी वांट्स अ पेनलेस डिलीवरी,
then she should be given that also. अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि कोविड-19 फीटस में या प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर जाता है या नहीं जाता है. टू डेट अभी तक वायरस हैज नॉट बीन फाउंड इन सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क में. तो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी की चॉइस है. If she wants to give and she is positive, she can give. If she's fine, if she's asymptomatic, अगर वो करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं. अदरवाइज अगर वो ज्यादा सिक हैं तो वो और मेथड्स यूज कर सकती हैं कि मिल्क को एक्सप्रेस करके दे दें या फिर डोनर ह्यूमन मिल्क ले लें. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हम अपने आप को इन सब चीजों से ऑक्यूपाइड रखें. सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं. रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक, प्रेयर, creative activities, positive thinking, hope, reading, music, any online learning courses. I was reading online and I found that a lot of people during this period, they were learning languages. वो हमेशा सोचते थे कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, बंगाली नहीं आती, पंजाबी नहीं आती. So this is one standard app which a lot of people are using to utilize this time, and they're learning another language just to keep their brain active and not get anxious or depressed. बाकी जैसे डॉक्टर शिवांशु ने काफी बार मेंशन कर ही दिया है, avoid tobacco, alcohol and other drugs. And again I would like to say, do not judge people with COVID infection. आपको उनके साथ physical distancing करनी है, but at the same time they need your care and concern. And if you happen to get infected with corona, remember that most people get better, so don't panic with it. So it's normal कि आप इस समय में sad हैं, stressed हैं, confused हैं, scared हैं, angry हैं, but talk to people, contact your friends and family, and be aware that not everything you hear about the virus may be true. So try to get information from reliable sources like WHO or ICMR, and limit your worry and agitation. जैसे मैं पहले भी बोला, media coverage कम से कम देखिए, and draw on skills जो आप हमेशा से करना चाहते थे. And if you must stay at home, maintain a healthy lifestyle including proper diet, sleep, exercise, and deal with many emotions you have in a healthy manner. And if you need any help, please contact. We are available at Celebrity Clinics and we are following all the safety measures: temperature check, hand sanitization, social distancing, check up with all COVID measures, and we are in collaboration with Artemis Hospital. These are the numbers which you can keep in mind for your consultation by appointment. And we have all these facilities. We have consultation, in-house pharmacy, lab collection, ECG, PFT, X-ray, ultrasound, CT, DEXA. We have specialty OPDs, people who have chronic pain. We have pain medicine from specialized doctors of Artemis, nephrology, plastic surgery, orthopedics, cardiology, all these by appointment surely in these times. And all major operative procedures or admissions are done at Artemis. So I thank all of you. Thank you very much for your patient listening. And I especially thank Mr. Fareed Khan, Sushant Mathur, from Artemis Hospitals, and Dr. Umesh Sehgal and Mr. Pankaj from S Block Residence. Thank you so much for organizing this and giving me and Dr. Shivanshu a chance to share our views. So one question can I ask Dr. Diksha Goel? Yes, sir. Yes, sir. Well, you said something about laughter therapy. Yes, first, we have President of Delhi Laughter Club, Mr. Arun Sethi, with us. But yes, I want to know from you that how far laughter yoga therapy is helpful in improving mental condition in this coronavirus pandemic. Sir, it releases all the good endorphins in the brain. It releases all the good interleukins which you need to heal. So it's a very important added therapy. If you get all the good hormones, if you have good cortisol, good hormones to fight the infection, it always gives you a boost.
Good, good. Thanks. Thanks, Dr. Diksha Goel. Thank you very much for the very, very informative lecture. Thank you. And we have some time. I think I'll request Mr. Arun Sethi. Mr. Arun Sethi may unmute you. Mr. Arun Sethi will tell something about laughter therapy, how it is helpful, how we do it. Niharika? Either you have to give me the rights or you have to do it yourself. 1 second, 1 second. Ma'am, while you are doing it, there is a question. If I can just take that question. Yes, yes. The question is from Deepak Duneja. He is having a heaviness in throat from past 15 days and not feeling hungry and having a headache from past 2 days. He consulted the ENT doctor and physician, and as they suggested, he took the ECG, chest X-ray, and DLC and all the blood reports, and all are normal. So can you advise him what to do? So how long he has been having this? Ma'am, from past 15 days, he is having a heaviness in his throat, and from past 2 days, he is having a headache, and he is having short appetite. He's not feeling hungry. Okay, so I think we can just a minute. Let me give you the rights back. It's okay if you are having a trouble. All you have to do. No, I have done it. I've done it. Yeah. So, well, he can. I would like to actually see his reports and everything, but he could just be having a normal viral illness, maybe a sinusitis. But of course, we need to look into it and talk to him personally into what else he is having. Is he having any fever? Or maybe you can unmute him and then we can talk directly to him. Mr. Deepak, you can unmute yourself. हेलो डॉक्टर. Yes, good evening, sir. मेरे को ये जैसे अभी बताया आपको निहारिका ने 15 डेज से आई एम हैविंग सम हैवीनेस इन द थ्रोट, बट इट इज कंसिस्टेंट. वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है. मेरे को 2 दिन से जैसे भूख कम लग रहा है बहुत ज्यादा, और क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बहुत हो रहा था. तो आई और थोड़ा सा हेडेक था, नॉट मेजर, माइल्ड हेडेक. तो मेरे को डॉक्टर ने आज मॉर्निंग में ही गया था मैं अपना फिजिशियन के पास, तो ही एडवाइज मी फॉर एन ईसीजी, देन एन चेस्ट एक्सरे, तो एंड सम ब्लड टेस्ट. तो ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल. ओके. So are you taking any medicine जो ये throat में heaviness हो रही है आपके? हाँ, थ्रोट